Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic of discussion is cholera. You all know that the cholera is a disease and the causative agent of this is the bacteria. Its name is Vibrio cholera. And that is the organism which lives or reproduces in our intestine. It bypasses the stomach and that is going to survive in the acidic condition of the stomach, because what it happens when we are taking in the food in larger amount or the food that might be having the bacteria in the larger amount, there is a chance कि वो bacteria इस acidic condition को bypass करता हुआ intestine में आ जाए, and that is going to stay inside the intestine, and then that is causing the cholera, and cholera is usually related with the water. Maybe that is definitely, you can see that this is too much contaminated or dirty water, unhygienic water hai, that is not a good water to drink. So the host of the Vibrio cholera bacteria is human intestine and not the stomach. Okay. What it happens that the Vibrio cholera, which causes the disease cholera, is linked with that of the water, and the particular symptom of this disease is the diarrhea. Diarrhea, that is acute diarrhea, एकदम से diarrhea हो जाता है, ठीक है, that is simply a kind of food poisoning. In this condition, the person faces the rice water diarrhea, बहुत पतला सा उसको watery diarrhea उसका produce होता है, watery feces आप कह लो उसको, ठीक है. And in this condition, what it happens whenever you all know that the body is producing watery stool or watery diarrhea हो रहा है, तो definitely large amount of water along with the salts which are known as the electrolytes, they are being lost from the body. Remember, मैं आपको हर दफा क्लास में भी बताती हूँ कि जब कभी भी water हमारी body में आता या जाता है, that is always linked with the amount of the salt, क्योंकि हमारी body में water potential maintain होना है. So एक specific water potential maintain होने के लिए उसके साथ electrolytes और salts का होना बहुत compulsion है उसकी, ठीक है. आपके टीयर्स हैं, टीयर्स के अंदर भी आपके सॉल्ट्स आ रहे होते हैं, so that the water potential is going to be maintained. Okay. And ultimately, whenever the person is facing the diarrhea, water is being lost from the body, the person will be having the dehydration. And if not treated, then ultimately that death of the person can occur. Okay. So how the prognosis of this cholera happens, that whenever the bacteria bypasses the stomach, that is going to be activated in the small intestine. And here that is having the flagellum, which are helping it to move. It crosses the mucous membrane of the small intestine, where it reaches the epithelial cell. एपिथेलियल सेल में पहुंचने से क्या होगा, दैट इज गोइंग टू प्रोड्यूस द कॉलेरा टॉक्सिन ओवर देयर, ठीक है जी, कॉलेरा टॉक्सिन. ओके, सो कॉलेरा टॉक्सिन वहां पे प्रोड्यूस कर देगा. अब कॉलेरा टॉक्सिन ने हमारी बॉडी में आके करना क्या है, दैट इज गोइंग टू इफेक्ट द क्लोराइड ion exchange. That is very much important keyword, that remember, cholera bacteria, that is the Vibrio cholera, and cholera itself is a disease that will be changing the chloride ion exchange in our intestine, ठीक है. Okay, if you people are going to intake the infected food or the water, so bacteria will ultimately bypassing the stomach, that will get enter into the intestine, where it is going to cause you people the illness. It is going to produce a toxin. अब इस टॉक्सिन ने हमारी इंटेस्टाइन के एपिथेलियल सेल को इफेक्ट करना है.
That is the lumen of our intestine. These are the epithelial cells, and that is the blood vessel which is having the water molecules in it. These are the chloride ion you people can see. Okay, so just see that the toxin will be causing the chloride ion protein channel to open. इसकी वजह से टॉक्सिन की वजह से ये क्लोराइड आयन जो चैनल प्रोटीन है ये हमारे पास ओपन हो जाएगी. एंड व्हाट इट हैपेंस, क्लोराइड आयन देयर विल बी गेटिंग इनसाइड द ल्यूमेन. तो अल्टीमेटली जब क्लोराइड आयन एपिथेलियल सेल से निकलकर बाहर इंटेस्टाइन की ल्यूमेन में आ जाएंगे तो जस्ट इमेजिन here in the lumen the solute concentration is going to be increased. solute की concentration क्या हो गई, ज्यादा हो गई. ठीक है. ओके, नाउ सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, इट मींस यहां पर वाटर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा. ठीक है. लो वाटर पोटेंशियल विल बी कॉज्ड बाय द सिक्रीशन ऑफ द क्लोराइड आयन इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन. देन व्हाट विल हैपन? Because of this low water potential of the lumen, water will be moving from the blood capillaries into the epithelial cell and then into the lumen. Water भी बाहर आ जाएगा. ठीक है जी. अब जब water बाहर आ जाएगा तो ultimately हमारे पास क्या हो जाएगा? There is these two, chloride ion and the water, they will be lost. They will be lost in the form of the diarrhea. एंड पर्सन विल बी डिहाइड्रेटेड क्योंकि उसकी बॉडी से, ब्लड से वाटर रिमूव हो चुका है. ओके, नाउ व्हाई वी आर डिस्कसिंग के डायरिया दैट इज टू मच बैड कंडीशन, बिकॉज एक्सट्रीमली वाटरी डायरिया, जिसे राइस वाटर स्टूल भी कहते हैं. राइस वाटर इसलिए कहते हैं, यू माइट हैव ऑब्जर्व कि जब आपके घर में कभी राइस कुक होते हैं तो राइस को जिस पानी के अंदर भिगोकर थोड़ी देर के लिए रखा जाता है, दैट इज स्लाइटली स्लाइटली मिल्की, तो उस टाइप का स्टूल प्रोड्यूस हो जाता है. इस कंडीशन में पर्सन को वॉमिटिंग भी होगी, डिहाइड्रेशन हो जाती है जिसमें आपको एक्सट्रीम थर्स्ट, यूरिन आउटपुट भी कम हो जाती है, टीयर्स भी प्रोड्यूस नहीं होते. पर्सन को हाइपोवोलेमिक शॉक हो जाता है जिसमें ब्लड वॉल्यूम, ब्लड के अंदर इतना पानी कम हो जाता है कि दैट कैन लीड द टुवर्ड्स द डेथ. चलें जी, अब एक थोड़े से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं कॉलेरा से रिलेटेड. Okay, here you can see a question that which of the following is an effect of cholera infection? Loss of salts from the blood, loss of water from the blood, blockage of small intestine, persistent diarrhea. So 1, 2 and 4 are the right. So that is the B option is right. Blockage तो किसी सूरत में नहीं होती. Okay, next question is, cholera is a disease caused by the bacterium called Vibrio cholera, which produces a toxin in the infected person gut. What is the effect of this toxin? It causes loss of water from the gut into the blood. के gut से lumen से दोबारा blood में पानी चला जाएगा. ठीक है, from the gut. Okay. इट कॉजेज लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द गॉल ब्लैडर. गॉल ब्लैडर का तो भाई कोई सीन ही नहीं है, तो बी और डी ऑप्शन तो वैसे ही कैंसिल होगी. इट कॉजेज वाटर टू एंटर द गट फ्रॉम द ब्लड. जी बिल्कुल, गट से, गट में आपके पास, गट में एंटर होता है फ्रॉम ब्लड. गट इज योर इंटेस्टाइन. ठीक है, सो सी ऑप्शन इज राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. द कॉलेरा बैक्टीरियम प्रोड्यूसेस टॉक्सिन दैट कॉजेज क्लोराइड आयन टू बी सिक्रेटेड इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन. अच्छा, अब इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपने, एग्जामिनर ने आपको सिर्फ अभी यही बताया है, अभी यही कहा है कि क्लोराइड आयन टू बी सिक्रेटेड इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, मींस कि अब सिक्रीशन इंटेस्टाइन में हो चुकी क्लोराइड आयन की, तो वहां पर वाटर पोटेंशियल हो जाएगा लेस. ठीक है जी. ओके, और अल्टीमेटली कहां से आए हैं, हमारे पास ब्लड से आ रहा है, तो वाटर पोटेंशियल वहां हो जाएगा राइज. हाउ डज दिस इफेक्ट द वाटर पोटेंशियल ऑफ ब्लड इन द इंटेस्टाइनल कैपिलरीज एंड द इंटेस्टाइनल कंटेंट? बेटा इसमें क्वेश्चन में आपने ध्यान रखना है कि आपने, चूंकि एकदम से ख्याल आता है कि हमारे पास ये दोनों लोअर कर देगा, ऐसा कुछ भी नहीं है. अभी उसने डायरिया का नहीं पूछ रहा, वो कॉलेरा का इफेक्ट उसने बताया कि क्लोराइड आयन ल्यूमेन में आ गए हैं. ल्यूमेन में आने से इंटेस्टाइनल कंटेंट में क्लोराइड आयन ज्यादा हो गए, मींस वाटर पोटेंशियल वहां
कम हो जाएगा। तो आपने आंसर बताना है। वाटर पोटेंशियल ब्लड कैपिलरीज में क्या हो जाएगा, वाटर पोटेंशियल चूंकि सोल्यूट वहां से निकला है तो अल्टीमेटली वो तो राइज हो जाएगा। और हमारे पास कंटेंट ऑफ जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहां पे वाटर पोटेंशियल लोअर होगा क्योंकि सॉल्ट वहां पे आ चुका है, तो सी ऑप्शन इज द राइट वन। Next is the cholera bacterium toxin causes dehydration and loss of salts from the blood in human. Which statement explain the reason for this? आंसर मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है बी। ठीक है, द क्लोराइड आयन आर secreted into the small intestine where they increase the water potential. How this is possible? ये कैसे हो सकता है कि क्लोराइड आयन जब स्मॉल इंटेस्टाइन में आए तो वाटर पोटेंशियल इंक्रीज हो, भाई वहां पे तो वाटर पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि सॉल्यूट ज्यादा हो गया है। बी देखते हैं, क्लोराइड आयन आर secreted into small intestine which causes water टू मूव इनटू द इंटेस्टाइन बाय ऑस्मोसिस। हाँ जी, वाटर पोटेंशियल मेंटेन रखने के लिए क्लोराइड आयन के पीछे पीछे वाटर भी आ जाएगा। Chloride ion are secreted into the small intestine, which causes water to move out of the intestine by osmosis. अब यहाँ पे बेटे ये ध्यान रखना, यहाँ पे into the है और यहाँ पे out है कि वो इंटेस्टाइन से ब्लड में जाएगा, ऐसा नहीं होता, ब्लड से इंटेस्टाइन में आएगा। ठीक है, क्लोराइड आयन आर secreted into the small intestine which causes the water potential of the blood decrease। भाई ब्लड में से तो क्लोराइड आयन आ रहे हैं तो वाटर पोटेंशियल तो ब्लड का क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। सो राइट ऑप्शन आपको मैंने बता दी बी। ओके, नाउ कमिंग टुवर्ड द ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया। डायरिया का ट्रीटमेंट जो है दैट इज ORT या ORS भी कहते हैं इसको, ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी या ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन। ठीक है, इसमें हम सॉल्ट्स होते हैं, वाटर होता है और इसको इंट्रावीनसली पर्सन को इन वेन्स में या ब्लड वेसल में इंजेक्शन के थ्रू दिया जा सकता है। सेकंड, घर में एक देसी तरीका होता है जो मदर अक्सर यूज करती हैं, हम भी अक्सर कर रहे होते हैं, हम ले रहे होते हैं स्कंजवी। ठीक है, और लेमनेड दैट इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ ORS और ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी की, जिसमें हमारी बॉडी में सॉल्ट्स भी मेंटेन हो रहे हैं, वाटर भी जा रहा है, एंड दैट इज गोइंग टू रिस्टोर द वाटर या ऑस्मोटिक बैलेंस इन द गट, उसको मेंटेन रख रहा है। सो पर्सन जब डायरिया में होता है, डायरिया की कंडीशन में, तो उसको रिहाइड्रेट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है ताकि उसकी बॉडी के सेल्स जो है वो क्रीनेशन में ना चले जाएं। डायरिया हो गया, बॉडी से पानी निकल गया तो सेल्स क्रीनेटेड हो जाएंगे, श्रिंक कर जाएंगे, उनकी स्पाइकी सरफेस हो जाएगी। और आपको पता है पानी हमारी बॉडी में एंजाइमेटिक एक्टिविटी के लिए कितना जरूरी है। ठीक है, सो ORS या ORT आपने देना है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया। आई होप द लेक्चर विल बी क्लियर टू यू। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक माई चैनल एंड कमेंट करना ना भूला करें, लाइक किया करें और मेरे चैनल को जरूर सपोर्ट भी कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।